वेलकम टू मॉडर्न तक्षशिला। मैं शाहीन ज़रीन। मैं आज लेकर के आई हूँ आप लोगों के CDS के कुछ लेफ़्ट क्वेश्चन से 3 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ इस पूरे क्वेश्चन के पेपर पर। सिर्फ बाकी के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। होपफुली आप लोगों ने बाकी 3 वीडियोस देख लिए होंगे और ये वीडियोस भी आज नहीं तो कल अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग ये वीडियो भी देख लेंगे। लास्ट हम लोग पैसेज 1 जो है वो कर चुके थे। पैसेज 2 लेफ्ट रह गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए हम लोग पैसेज 2 कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन बीच के जब एंटोनिम्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चलिए देखते हैं कि पैसेज 2 में क्या बोल रहा है। पैसेज जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत रिलैक्स होकर के, टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब पैसेज दिया जाता है तो वो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो एक पैसेज थे वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन देखिए ये जो पैसेज 2 है ये काफ़ी लॉन्ग है ना। तो जब हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे तो उस पैसेज को पढ़ते वक्त में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो सेम एज जब हम लोग पैसेज 2 पढ़ेंगे, जो हम लोग इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ताकि क्वेश्चंस अगर उनके रिगार्डिंग आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से आंसर्स ले सकते हैं। बस पैसेज जब पढ़ेंगे उस पर काफ़ी ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे, माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करके। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पैसेज 2 पढ़ना। ये पैसेज जो रहते हैं इससे क्या रहता है कि 5 क्वेश्चंस पैसेज 1 से दिया हुआ था, सेम एज 5 क्वेश्चंस जो है वो पैसेज 2 से भी दिए हुए होंगे और उसको सॉल्व करने रहेंगे। आइए देखते हैं पैसेज 2। एज वी डिस्कस्ड फूड एंड sang every song we could remember and talked incessantly, we were slowly moving deeper into the Atlantic, and we got the feeling, really, that we belonged there, and that the ships, the passage, the horizon were only hurrying strangers. We were actually living on the oceans. We were actually living on the oceans. Okay. We discovered that the birds all seemed to league up at night time. अंडरलाइन करके रखते हैं इस सेंटेंस को। At night time, resting on the water by the hundreds. When we came poking along, we seemed so much a part of the sea that the birds would not move until we were about 5 yards away. Then they would flutter off, leaving feathers floating in the water, and settle again a few yards away. Then the dolphins and porpoises would, ये कम अप होगा, यहाँ पे सी होना चाहिए, कम अप एट सनसेट एंड मूव इन अमंग अस, एंड द बर्ड्स दे वुड कम अप वेरी लेजली अंडर द बर्ड्स विच वुड गो अप ऑन देयर हिल्स एंड फ्लैप देयर विंग्स अ बिट एंड देन सेटल राइट डाउन अगेन. 2 whales joined us one evening and played ring around Rosie so close to us that the Che could have reached out an oar and tapped one. Okay, next para. We had calculated that we had just enough rations to making land, but the easterly winds caused an agonizing reappraisal. It would have been an interesting experience running right down like that, but we felt we must not risk other people's life by making them search for us. We decided to accept rations from the next ship that stopped. Was it a mature decision? This was also the time when the strain of wag really began to tell on us. I wrote in my log, important है, already underline है, इसको underline रहने दीजिए. I have known fear many times in my life, and indeed I have often striven to develop a situation that provided fear in both boxing and parachuting. I have never known anything like this cannot be over tomorrow or for many tomorrows. Somehow it is like being rubbed down with sandpaper. I honestly do not know how many storms there have been now, and each leaves us progressively weaker. Tonight we lie and wait. Nothing could save us if we get into difficulty. No ship could get us off these seas even if it arrived in the time. We are completely in God's hand,
at the mercy of the weather. All night the wind screams louder and louder, and the sound of the sea grows. We talk of many things. The night train to Scotland. Underline these lines. The many things we have done, and slowly we are overtaken by an enormous feelings of humility and a desire to return to try and live a better life. The weather reached a climax at 0300 and then declined rapidly. Thank goodness we could not see the sea. ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे. We were actually living on the ocean implies. एक्चुअली जो ओशंस में रह रहे थे उसके मतलब क्या समझ आता है. They were homeless, वो लोग होमलेस थे और हमेशा ओशन में ही रहते थे. या फिर they were on a long voyage into Atlantic, एक लंबे सफ़र पे थे अटलांटिक का. या फिर they were without any source of income, या फिर उन लोगों की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी. या फिर they were fishing deep into the Atlantic for their living. They were fishing deep into the Atlantic. अटलांटिक में वो लोग अपने लिविंग के लिए, रहने के लिए क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे. नहीं, एक्चुअली क्या था, ओके They were on a long voyage into Atlantic. लंबे सफर में थे ना वो लोग अटलांटिक में. तो हम लोगों के इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द बर्ड्स ऑल सीम टू लीग अप एट नाइट टाइम इम्प्लाइज. बिल्कुल ऊपर में हम लोग खुद ने देखा था ना, सी. ये रहा, हम लोगों ने अंडरलाइन भी किया था, लीग अप एट नाइट टाइम. ठीक है, इसके मीनिंग क्या होते हैं. लेफ्ट अलोन एट नाइट टाइम, आइसोलेटेड एट नाइट टाइम, गेट टुगेदर एट नाइट टाइम, या स्टे इन ग्रुप एट नाइट टाइम. जो बर्ड्स थे वो लोग एक साथ जो दिख रहे थे, क्यों, क्या थे वो लोग, लेफ्ट अलोन एट नाइट टाइम हो गए थे, छोड़ दिए गए थे, या फिर आइसोलेट कर दिए गए थे रात के वक्त पे, या फिर गेट टुगेदर कर रहे थे वो रात के वक्त में, या फिर वो लोग ग्रुप बना करके रात के टाइम में रहते. दिस इज द राइट आंसर. वो लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप बना करके रह रहे थे रात के वक्त में. What did the author write in his log? इस लॉग जो हम लोग, जिसको लॉग को भी हम लोगों ने अंडरलाइन किया था ना, उस लॉग में ऑथर ने क्या लिखा था. दे फेस्ड द वर्स्ट काइंड ऑफ फेयर एवर एक्सपीरियंस्ड, या फिर दे वर एक्सलेंट इन बॉक्सिंग एंड पैराशूटिंग, दे फेस्ड द स्टॉर्म्स ब्रेवली, दे स्टार्टेड फॉर फूड, दे फेस द वर्स्ट काइंड ऑफ फेयर एवर एक्सपीरियंस्ड. एक बार हम लोग देख भी लेते हैं जो हम लोगों ने किया था, अंडरलाइन किया था ना हम लोगों ने, एक बार वो अंडरलाइन चेक करते हैं. देखिए, आई हैव नोन फेयर मेनी टाइम्स ऑफ माई लाइफ एंड इंडीड आई हैव ऑफन स्ट्राइव टू डेवलप अ सिचुएशन दैट प्रोवाइडेड फेयर इन द बॉक्सिंग एंड पैराशूटिंग. आई हैव नेवर नोन एनीथिंग लाइक दिस. इसका मतलब ही यही है कि वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही गंदा एक्सपीरियंस किए थे, वर्स्ट काइंड ऑफ फेयर उन लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे. तो हम लोगों का 88 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ए है. नाउ हम लोग मूव करते हैं 89 की तरफ. ओके, दे लॉस्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल बिकॉज, वो लोगों सारी की सारी होप जो है वो लॉस्ट कर चुके थे. क्या रीज़न था, उन लोगों ने लॉस्ट कर दिया था. उन लोगों का रीज़न देखते हैं. इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, हद से ज़्यादा ठंड थी. देयर वॉज नो हेल्प कमिंग टू देम, कोई हेल्प नहीं कर रहे थे वो लोगों का. दे वर फेसिंग अ सेवियर सी स्टॉर्म, या फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सी स्टॉर्म जो है, समुद्र में जो तूफान है, बहुत ज़्यादा गंदी वालियाँ हो गई थी. या फिर दे वर फ्राइटेंड बाय द वेल्स एंड डॉल्फिन्स, या फिर वो लोग वेल्स या फिर डॉल्फिन से डर रहे थे. सी, अगर हम लोगों का ये ऑप्शन नहीं रहता तो समवेयर ये ऑप्शन जा सकता था कि उस जगह में कोई भी उन लोगों का हेल्प करने वाला नहीं था. लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी ये वाला ऑप्शंस दिए हुए हैं. दे वर फेसिंग द सेवियर सी स्टॉर्म, तो यही वाली जो है सी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19.
We are overtaken by an enormous feeling of humility implies that they, ऊपर में थी ना एक जगह, उसको भी शायद हम लोगों ने अंडरलाइन किया था, उसमें क्या, उसके बारे में क्या बोल रहे, वी आर ओवरटेकन बाय enormous feeling, बहुत सारी ह्यूमिलिटी की फीलिंग हो रही थी। इसके माने क्या होता है, हैव लॉस्ट फेथ इन देमसेल्व्स, उन लोग अपने आप के ऊपर लॉस्ट, उन लोग के ऊपर फेथ नहीं रहता खुद पर, वर रेडी टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम दिस शिप अराउंड देम, उन लोगों के पास शिप्स थी जिससे वो लोग हेल्प लेने के लिए रेडी हो गए थे, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। नीडेड इक्विपमेंट एंड फूड टू सर्वाइव, या फिर उन लोगों को फूड की ज़रूरत थी सर्वाइव करने के लिए, या फिर हैव एक्सेप्टेड द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ द नेचर विथ मॉडेस्टी, या फिर वो लोग क्या किए थे कि उस चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट कर लिए थे कि नेचर की जो पावर है, वो जो स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को वो लोग क्या किए थे, एक्सेप्ट कर चुके थे। यही आपका राइट आंसर हो जाता है 90 का डी। लास्ट पैरा में ये मेंशन भी है, आइए देख लेते हैं एक बार। See, we talked of many things, the night train to Scotland, the many things we have done, and slowly we are overtaken by an enormous feeling of humility and a desire to return to try and live a better life. The way they reach a climax. All night the wind screams louder and louder and the sound of the seagulls, we talk many things the night, यही बात बोल रहा है ना कि वो इन चीज़ों को we are completely in God's hands at the mercy of weather, एक्सेप्ट कर लिया था उन लोगों ने इन बातों को, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो उन लोगों ने क्या कहता है, एक्सेप्ट कर लिया था। आइए नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट पोर्शन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगेन डायरेक्शन पढ़े बिना तो बिल्कुल आंसर्स नहीं करने वाले हैं हम लोग, डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइन, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक वर्ड में क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दिस वन, कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ सारे के सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में कौन सी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एज पर सेंटेंस, सी हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं कि एक ही वर्ड के नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन एज पर सेंटेंस जो है ये हम लोगों की क्या है, वही चीज हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। द कंक्लूजन्स that they came to are highly questionable। किसके बारे में है ये जो क्वेश्चनेबल है, ये किसके बारे में है, पहले ये बताएं क्या चीज क्वेश्चनेबल है। द कॉन्क्लूजन्स, कॉन्क्लूजन्स जो है वो क्वेश्चनेबल है। एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है हम लोगों का, नाउन के लिए। तो ये क्वेश्चनेबल वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, कंक्लूजन के लिए यूज होता है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन होता है, और जो चीज नाउन के लिए यूज किया जाए वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ऐसे आर्टिकल्स भी नाउन के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनेबल वर्ड है, तो ये क्वेश्चनेबल वर्ड क्या हो जाता है हम लोगों का, एडजेक्टिव हो जाता है। सो राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 91 के राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एडजेक्टिव। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 92। दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयेज टू अमेरिका। मार्क्स द क्विंसेंट, सिंपली हम लोग इसको किसके संग जा सकते हैं, देखिए यहाँ पे आर्टिकल लगा है। आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, अभी ऊपर में बताया कि गई थी ना मैं कि नाउन के लिए आर्टिकल्स भी आता है, तो आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, इसलिए क्विंसेंटरी हम लोगों का क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। ग्रामर्स के कुछ गोल्डन रूल्स है, अगर वो मालूम हो ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच करना ये 10 क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है। I still cherish the memories of those far off days. I still cherish the memories of those far off days. See, far off days जो है ये टर्म्स किसके लिए आया है, डेज के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, डेज के लिए आया है। और डेज हम लोगों का क्या होता है, नाउन होता है। नाउन के लिए आने वाली जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये भी हम लोग का फार ऑफ भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, now question number 94। I don't think I will come on Saturday. I have a lot of work to do. Besides, I do not really like parties.
सी यहाँ पे आप लोगों को 3 सेंटेंस दिए गए हैं और 3 सेंटेंस में एक वर्ड दिया है और वो वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। सिर्फ ये वर्ड देने से शायद यहाँ पे बिसाइड्स जो है कुछ और मायने रखता, लेकिन यहाँ पर बिसाइड्स जो है क्या है वही हम लोग देखेंगे, समझेंगे भी। वैसे ही बिसाइड्स अगर हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाए तो हम लोग सिंपली उसको कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बिसाइड्स जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं। सपोज के अगर हम लोग बोलते हैं स्लीप, तो स्लीप क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। किंग बोलते हैं तो किंग क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से बिसाइड्स जब हम लोग सुनते हैं तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे बिसाइड्स क्या है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। बिसाइड्स जो है यहाँ पे एडवर्ब है। कैसे, पहले एडवर्ब क्या होता है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बिसाइड्स जो एडवर्ब वो होता है जो हम लोगों के वर्ब को डिफाइन करे। अभी तक यही मालूम था हम लोगों को ना, जो हम लोगों के वर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है। आज आप लोगों की नॉलेज में थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगी। जो हम लोगों के एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है ना, वो भी एडवर्ब होता है। वन मोर थिंग, जो हम लोगों के एडवर्ब को भी डिफाइन करता है ना, वो एडवर्ब होता है। हाउ, सेंटेंस सुनते हैं। देखिए, आई स्लीप वेल। वेल क्या हो जाता है यहाँ पे, जो हम लोगों के वर्ब को डिफाइन करता है। जो हम लोगों के वर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है। स्लीप के संग वेल लगा, स्लीप के लिए वेल यूज हुआ है, तो ये जो वेल वर्ड है हम लोगों का क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाता है। शी प्लेज वेरी वेल। शी प्लेज वेरी वेल। वेल वर्ड अभी हम लोग क्या यूज किए थे, एडवर्ब यूज किए थे। प्लेस के लिए इस्तेमाल हुआ, यूज किया गया है। नाउ ये वेरी टर्म्स जो है हम लोग किसके लिए लगा रहे हैं, वेल के लिए लगा रहे हैं। तो वेल ऑलरेडी हम लोगों का क्या है, वर्ब, एडवर्ब है। अब उस एडवर्ब के लिए हम लोग एक नई वर्ड ऐड कर रहे हैं, वेरी। तो ये वेरी जो मेरा क्या हो जाता है, फिर से एडवर्ब हो जाता है। यानी कि जो वर्ड एडवर्ब को भी डिफाइन करता है वो मेरा क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। नाउ एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, एडजेक्टिव को कैसे एडवर्ब डिफाइन करता है। शी इज अ नाइस गर्ल। यहां पे जो नाइस है वो गर्ल के लिए यूज हुआ है तो ये एडजेक्टिव होता है, राइट। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। नाइस गर्ल के लिए यूज हुआ है, दैट इज नाउन, गर्ल इज नाउन, और गर्ल के लिए जो नाइस यूज हुआ है वो नाइस एडजेक्टिव हो जाता है। मगर हम लोग क्या कह रहे हैं, वेरी नाइस गर्ल, तो वेरी कुछ ना कुछ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा ना। तो वही नाइस को वो और डिफाइन कर दे रहा है कि नाइस तो है लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा अच्छी है वो। तो ये जो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, एडजेक्टिव को हम लोग और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे तो वही वेरी यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोगों का एडवर्ब हो जाता है। होपफुली समझ आया कि एडवर्ब कैसे ये तीनों को डिफाइन करता है। यहाँ पे बिसाइड्स भी क्या है, एडवर्ब है। कुछ लोग कहेंगे कि ये कंजंक्शन है, यहाँ पे कंजंक्शन ऑप्शन में इनफैक्ट दिया भी गया है, हो सकता था कंजंक्शन, बट हम लोग जो बेसिक कंजंक्शंस रूल जानते हैं वो क्या जानते हैं कि दो वर्ड और दो सेंटेंस को जो ऐड करेगा वो कंजंक्शन होता है। यहाँ पे सिंपली एक की ही सेंटेंस है, बिसाइड्स आई डू नॉट रियली लाइक पार्टीज। अंडरस्टूड, इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्ब होगा। यहाँ पे बिसाइड्स है, नॉट बिसाइड। बिसाइड जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे टर्म्स क्या यूज हुआ है, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, इसके बिना, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट दिस। यहाँ पे बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बिसाइड्स जो है प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन बिसाइड होता है। होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 94 स्टार मारा हुआ था मेरा, ताकि आप लोगों को समझा सकूं, समझ आई हो। तो हम लोगों का 94 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। द बॉटम लाइन इज दैट
वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉटम लाइन, ये हम लोगों का सब्जेक्ट है, राइट? जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन होता है। एक ये कंडीशन भी है। सेकंड, बॉटम लाइन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, एक ये कंडीशन भी है। दो कंडीशन हम लोगों का यहाँ पे हेंस प्रूफ हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है? सिंपली हम लोगों का नाउन। तो 95 का सही आंसर क्या हो जाता है? नाउन। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ मूव करते हैं। ट्राई टू नॉक दैट वॉज ओवर। ठीक है, वॉज ओवर जो है ये टर्म्स जो है एक साथ देखा जाए अगर, तो ये हम लोगों का फ्रेजल वर्ब की तरह लग रहा है, लेकिन नहीं होगा फ्रेजल वर्ब। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे भी रीजन होते हैं। क्योंकि नॉक जो होता है ऑलरेडी यहाँ पे, ये जो नॉक है ये वर्ब है। ट्राई टू नॉक दैट वॉस खत्म हो जाता है। ट्राई टू नॉक ओवर दैट वॉस, साउंड सही नहीं निकला। असल में ये जो ओवर वर्ड है ना, ये नॉक के संग अटैच्ड है। ठीक है, ये नॉक ओवर, जैसे कि गो थ्रू, गो इन होता है ना, ठीक उसी तरीके से नॉक ओवर भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो नॉक ओवर फ्रेजल वर्ब जो है, ये नॉक मेरा क्या है? वर्ब है, राइट? नॉक के संग आने वाला ओवर जो होगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ओवर क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ओवर को प्रपोजिशन लगा के आएंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जब हम लोगों को इस तरीके का सेंटेंस के अंदर में अगर हम लोगों को अंडरलाइन वर्ड्स मिल जाएगा, तो हम लोग सिर्फ वर्ड्स को नहीं देखेंगे, हम लोग पूरी सेंटेंस पढ़ के समझेंगे यहाँ पे वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यही खेल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। I'd like an ice cream. Are you having one too? बैकग्राउंड साउंड बहुत हो रही, थोड़ी सी आप लोग अवॉइड कर दे। I would like an ice cream. Are you having one too? वैसे तो वन सिंपली नाउन हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। वाई? क्योंकि ये जो वन है ये टू सेंटेंस है ना यहाँ पे। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू, ये वन जो है ये आया किसके लिए है? आइसक्रीम के लिए ना। ये किसके लिए आया हम लोगों का? आइसक्रीम के लिए आया है ना। तो जब आइसक्रीम के लिए आया है तो आइसक्रीम क्या है हम लोगों का? नाउन है। नाउन के सब्स्टिट्यूट में जो वर्ड यूज होता है वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है, राइट? यहाँ पे एक्चुअली बोलने का मकसद क्या है? आइसक्रीम ही है ना। आइसक्रीम की जगह पे ये वन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल करते हैं, जो यूज करते हैं, द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे वन क्या हो जाता है हम लोगों का? प्रोनाउन हो जाता है। 97 का आंसर क्या हो जाता है हम लोगों का? बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98। माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्ड द ट्रिप। यहाँ पे भी वही है, वो कंजंक्शन और एडवर्ब वाला खेल था ना जो क्वेश्चन नंबर 94 में बताया था, सेम चीज यहाँ पर है। अदरवाइज को कंजंक्शन ही बताते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे भी वही है, एडवर्ब होगा। रीजन है सेम है कि एक ही सेंटेंस को अगर बीच में आएगा, दो वर्ड को या दो सेंटेंस को वो क्या करेगा? कंबाइन करता है, ऐड करता है, तब वो कंजंक्शन होगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि 98 का भी हम लोग का राइट आंसर क्या होता है? एडवर्ब। She wrote me an anguished letter from her prison cell. She wrote me an anguished letter from her prison cell. यहाँ पे टर्म्स हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? एंग्विस्ड जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। से यहाँ पे ईडी लगा है ना, ईडी लगा है तो स्टूडेंट सोचेंगे कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और ऑप्शन बी को लगा करके आ जाएंगे। बट ये देखें आप लोग, यहाँ पे एंग्विस्ड आया किससे पहले? लेटर से पहले। लेटर के लिए ये टर्म्स आया है ना, और नाउन यहाँ पे आर्टिकल भी दिया हुआ है, यानी कि लेटर डेफिनेटली नाउन है,
तो लेटर जो नाउन है, लेटर के लिए ये टर्म्स यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। नाउन के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, देयर इज अ विजिटर फॉर यू। देयर इज अ विजिटर फॉर यू, अंडरलाइन वर्ड क्या हम लोगों का? ए है, और उसको हम लोगों को देखना है कि क्या है वो। रिलेशन प्रोनाउन, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, रिलेशन प्रोनाउन दिया इन लोगों ने। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल या फिर एडवर्ब, किसके लिए यूज हुआ है? देयर इज अ विजिटर। विजिटर क्या है हम लोगों का? नाउन है। नाउन के लिए यूज होने वाला वर्ड जो होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है या फिर आर्टिकल होता है। पर यहाँ पे दो आर्टिकल दिया गया है, एक डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जिन बच्चों को मालूम है इट्स गुड कि मालूम है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है मैं उन बच्चों को बता देती हूँ। डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है बच्चों आप लोगों का द, और इनडेफिनेट आर्टिकल हो जाता है ए या फिर एन। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज ऑप्शन सी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर जो है वो हम लोग का क्या है? ऑप्शन सी है। आइए अब हम लोग दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरे सेक्शन में हम लोग का एंटोनिम्स है 101 से 110 तक, जो लास्ट वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। यानी कि हम लोग इसके बाद वाले सेक्शन में चलेंगे, जो हम लोग का सिर्फ आखिरी सेक्शन है, ये लास्ट सेक्शन है, क्लोज कॉम्पोजिशन। इसी को हम लोग क्या करेंगे? आज कंप्लीट करके ये सीडीएस का क्वेश्चन पेपर हम लोगों का सॉल्व हो चुका होगा और ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी आज। चलिए क्लोज कंपोजिशन का हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन क्या है? क्लोज कंपोजिशन क्या होता है समझाऊंगी, डायरेक्शन पढ़ लेती हूँ। Each of the following sentence in this section has a blank space with 4 words or group of words given. Select which word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. एक पूरी पैसेज टाइप पे दी हुई है, उसमें जो सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में ब्लैंक है और उस ब्लैंक में 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि ग्रामर का आपका टेंस होगा या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। सारी चीज़ों को मिक्स करके इस पोर्शन में रहता है और उसमें से राइट ऑप्शन यूज़ करके आप लोगों को सेंटेंस बनाना रहता है। 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो सही होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है? बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ब्लैंक वेरी इजी टू एक्वायर। Bad habits such as overeating, drinking और smoking very easy to acquire। यहाँ पे overeating, drinking और smoking सब्जेक्ट नहीं है, bad habits ही हम लोगों का क्या है? ऑप्शन में है। तो बैड हैबिट जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो किसके साथ जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। बैड हैबिट्स आर वेरी इजी टू एक्वायर, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, बट एक्चुअली सेंटेंसेस बैड हैबिट्स आर वेरी इजी टू एक्वायर, कि बहुत जल्दी हम लोग जो बैड हैबिट्स को एक्वायर कर लेते हैं। हैव वेरी इजी नहीं, विल शैल नहीं होगा, आर वेरी इजी टू एक्वायर, ये कि फैक्ट है, फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है, तो इसलिए हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर हो जाता है। यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 111। Question number 112. One should fight blank the force of habit. One should fight blank the force of habit. Even good things can be very harmful. See यहाँ पे even के बाद फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप होना चाहिए क्योंकि ये even जो है कैप से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस है ये। One should fight from, for, of, against the force of habit। फाइट के साथ ना 99.9% जो है अगेंस्ट लगता है, क्योंकि फाइट जो है किसी के अगेंस्ट में किया जाता है। तो यहाँ जहाँ पे ना भी समझ में आए और ऑप्शन में अगर अगेंस्ट है ना, तो आप लोग अगेंस्ट ही डाला करें, ये जान करके कि फाइट हमेशा किसी के अगेंस्ट में की जाती है। चलिए तो राइट आंसर हम लोग का 112 का क्या जाता है? ऑप्शन डी, अगेंस्ट। ओके, इवन गुड थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल। Even good things can be very harmful when done to excess, in excess, with excess or as excess।
कि गुड थिंग्स भी हार्मफुल हो जाती है जब हम लोग हद से ज़्यादा करते हैं। तो जब हद से ज़्यादा करते हैं तो उसके साथ हम लोगों का कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? एक्सेस जो है, एक्सेस के साथ हम लोगों का कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? एक्सेस के साथ हम लोगों का लगता है इन एक्सेस, हद से ज़्यादा में अगर हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, इन। Okay, the wise man is conscientious about with regard to of या with his bad habits and checks them promptly. Wise man is conscientious about होना चाहिए या फिर with regard to of या with, क्या लग रहा है क्या ऑप्शन होंगे हम लोगों के? कॉन्शियस अबाउट ही सब कर देते हैं, अबाउट हिज बैड हैबिट नहीं, लेकिन हम लोगों का राइट आंसर जो है वो सी है। यहाँ पर कॉन्शियस अबाउट होगा, कॉन्शियस अबाउट। क्यों कि सी कॉन्शियस अबाउट नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियस अगर हम लोग होते हैं तो वो ऑलरेडी अपने आप में अबाउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग को प्रेप यूज़ करना होगा तो वो ऑफ होगा, कॉन्शियस ऑफ हिज बैड हैबिट्स। The use of tobacco has spread all around of over in the world. The use of tobacco has spread all around, all of, all over, all in the world. स्टूडेंट्स को दो ही ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गए होंगे, एक ऑल अराउंड और एक ऑल ओवर में। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? हम लोग का राइट ऑप्शन जो है हम लोग का ऑप्शन सी है, ऑल ओवर। ओके, those who have acquired this bad habit would barely, scarcely, seldom or hardly be able to get rid of it. जिन लोगों की ये बैड हैबिट हो जाती है बड़ी मुश्किल से, कभी कभी बेयरली, मुश्किल से, नामुमकिन, या बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट। दो ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेल्डम एंड हार्डली। तो 116 के हम लोग का राइट ऑप्शन क्या होता है? हार्डली नहीं हो सकता। सी, दोज हु एक्वायर्ड दिस बैड हैबिट वुड सेल्डम बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट, मीन्स कभी कभी, सारे के सारे इससे जो है छुटकारा नहीं पाते हैं। अगर सबके सब छुटकारा पालेंगे बैड हैबिट्स के, देन वहाँ पे मुश्किल से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ बड़ी मुश्किल से ये लोग जो है अपनी हैबिट्स को छुड़ा देते हैं, सारे के सारे लोग। लेकिन यहाँ पे सारे लोग नहीं छुड़ा पाते, कुछ लोग ही कर पाते हैं, इसलिए सेल्डम वर्ड का यूज़ होगा कि कभी कभी ही ये लोग रिड ऑफ इट कर पाते हैं, इसको छुड़ा पाते हैं। सॉरी, सी होंगे, गलती से बी में टिक हो गया है। स्कार्सली तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच इज मोर कॉमन इन कोल्ड कंट्रीज देन इन वार्मर वंस? डज नोबडी एनी गुड एंड शुड बी अवॉइडेड पर्टिकुलरली, ओके, ऑल टुगेदर, एट हैबिचुअली, डिस्क्रेटली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एल्कोहल विच इज मोर कॉमन इन ओल्ड कंट्रीज देन इन वार्मर वंस। एल्कोहल ज्यादा कॉमन कहाँ पर है? कोल्ड कंट्री में, ना कि रादर देन वार्मर वंस। मीन्स वार्मर वंस कंट्री से ज्यादा वो कहाँ पे यूज किया जाता है? कोल्ड कंट्रीज में। डज नोबडी एनी गुड एंड शुड बी अवॉइडेड, नहीं हो सकता, अवॉइडेड नहीं किया जा सकता है। क्या होगा? पर्टिकुलरली, ऑल टुगेदर, एट हैबिचुअली, या फिर डिस्क्रीटली। चेक करें आप लोग, क्या होगा? ऑल टुगेदर होगा ना, साथ में, अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऑल टुगेदर। द राइट आंसर विल बी बी, ऑल टुगेदर। Alcohol even if taken in small quantities, alcohol even if taken in small quantities tends to affect one's health, does to affect, levels to affect, or denies to affect. See, alcohol क्या यहाँ पे बोल रहा है? alcohol even if taken in small quantities, अगर कम अमाउंट में भी अल्कोहल लेते हैं, कम क्वांटिटी में भी लेते हैं, तो वो किसी के हेल्थ को क्या करेगा?
इफेक्ट करेगा ना, डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंड्स टू अफेक्ट, कि वो अफेक्ट करेगा। फॉर द विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म, विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म, विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म मीन्स व्हाट, कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल के आदी है और अल्कोहल से उन लोगों की लाइफ जो है वो बर्बाद हो चुकी है, दे आर अडिक्टेड है, वो उन्हीं को कह रहे हैं। डायग्नोज, चैलेंज, ट्रीटमेंट या क्रॉनिक हेल्प्स, बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड। डायग्नोज हेल्प्स, मदद, हेल्प्स यहाँ पे कैसी हेल्प, डायग्नोज हेल्प करते हैं या चैलेंज करते हैं या ट्रीटमेंट हेल्प्स, बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड। 19 का क्या लग रहा है, फिर से पढ़ेंगे सेंटेंस एक बार। फॉर द विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म डायग्नोज हेल्प्स, नहीं, हेल्प्स डायग्नोज नहीं करते। चैलेंज हेल्प, इम्पॉसिबल, चैलेंज होगा ही नहीं। फॉर द विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट, अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट हेल्प्स, फॉर द विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट हेल्प्स, मदद करता है, बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड। ट्रीटमेंट इज द राइट ऑप्शन। Symptoms of alcoholism. Symptoms of alcoholism include repeated alcohol consumption. Symptoms of alcoholism include repeated alcohol consumption, serious related legal and health issue, despite related नहीं हो सकता है, मीनिंग रिलेटेड लीगल हेल्थ इशू या फिर थेरेप्यूटिक रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इशू, क्या होने के चांसेस है। सीरियस नहीं होंगे, डिस्पाइट नहीं होंगे, मीनिंग नहीं होंगे, थेरेप्यूटिक नहीं होंगे, कौन से नहीं होंगे या फिर कौन से होंगे, ये आप लोग देख के बताएं। फिर से पढ़ेंगे सेंटेंस। सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म इंक्लूड रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन डिस्पाइट रिलेटेड लीगल हेल्थ इशू, ठीक है। डिस्पाइट सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन, बार बार अल्कोहल क्या किया जाता है, कंज्यूम करता है। डिस्पाइट रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इशू, हेल्थ और लीगल इशू के अलावा भी क्या करते हैं वो लोग, अल्कोहलिज्म वाले बार बार अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बी। ओके, यहाँ पर हम लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। पूरी की पूरी सीडीएस के क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम में इस साल, उसको हम लोगों ने क्या किया है, 4 वीडियोस बना करके अपलोड किया है आप लोगों के ही लिए। काफ़ी लेट हो गई थी मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि काफ़ी लेट हूँ मैं, लेकिन लेट होने के रीजंस दिए हैं मैंने, क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल के साथ मैंने 120 क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाया है। साथ में ये भी बताया है कि क्या रीज़न है इस टाइम पे देने का। अब से क्या होगा कि स्टूडेंट्स फिर से रिवीजन करेंगे कमिंग जो है सीडीएस के एग्जाम्स के लिए। जो पिछले पेपर्स जो दे के आ चुके हैं वो लोग वो क्वेश्चन पेपर निकालते नहीं हैं, और जो बंदे पहली बार बैठ रहे हैं वो लोग भी जब पेपर आया होगा तब वो लोग देखे होंगे। तो अभी अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। मे बी जो क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व किए हैं उसमें और ये वीडियो को देखने में काफ़ी डिफरेंस फील करेंगे आप लोग कि हाँ, क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से भी पढ़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। दूसरों के अगर अच्छे लगे, अगर मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ फॉलो करें और समझें कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी रिलैक्स माइंड होकर के हमेशा एग्जाम में बैठा करें। क्वेश्चन पेपर, हाँ यहाँ पे काफ़ी वक्त लगा, इतना टाइम हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन बार बार मॉक टेस्ट अगर देंगे आप लोग तो उससे आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मॉक टेस्ट देते रहें, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के इसी तरीके से सॉल्व करते रहें, वीडियोज़ देखें। आप लोगों को कोई और वीडियोस अगर चाहिए होगा किसी दूसरे एग्जाम्स के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके भी वीडियोस बनाने के लिए पूरी ट्राई करूँगी। किसी को कोई भी डाउट हो अगर, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही आप लोगों को कोई प्रॉब्लम के साथ साथ अगर कोई सुझाव देना है कि वीडियोज़ में क्या ठीक करना है, क्या बताना है, तो वो भी बिल्कुल कमेंट करें। आई होप आप लोगों को अब तक के मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। इस चैनल में मेरे अलावा दूसरे फैकल्टीज़ के भी वीडियोस आते हैं, उनके भी वीडियोस देखा करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर लें
और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। रोज़ अपलोड होते हैं हमारे वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। होपफुली नेक्स्ट वीडियो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर या फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मैं ज़रूर मिलूंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।